तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं या फिर जैसे हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, उस समय आपको अनम्यूट किया जाएगा, उस समय आप सवाल पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड नाउ we'll start our this next session about Lepakshi paintings. Okay, so give me a minute. We'll start the session. Before start this session, again I want to say that yesterday around 78 scholars sent their notes. So among that there are 50 professors and scholars and other professionals like the superintendent of archaeologists. तो इन लोगों ने अपने असाइनमेंट भेजे हैं और स्टूडेंट्स में से जो है अराउंड 28 स्टूडेंट्स के नोट्स अभी तक प्राप्त हुए हैं. So around 190 participants are there. So humble request to all the participants, those who are at here or they will listen this recording. Request to all of you that please send your notes, daily notes. If not possible to send it daily, then please send it on the up to the last day. Okay. How we will link Amravati's sculptures and Ajanta paintings. तो यहाँ पर आप शैली का प्रभाव जिसको हम कहते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ द स्टाइल्स, तो उसको अगर देखेंगे तो अमरावती के जो शिल्प है, पर्टिकुलरली जो एक बहुत फेमस ये दिखाया जाता है अमरावती के स्तूपा के ऊपर जो आकाश संचारी गंधर्व वगैरह जो दिखाए गए हैं, अगर फ्लाइंग फिगर्स जिसको हम कहते हैं, उसको अगर आप देखेंगे और अजंता के सेम फिगर्स को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि देयर आर सम सिमिलैरिटीज. अगेन द फ्लोरल मोटिव्स वगैरह उसके डिजाइन वगैरह आप देखेंगे तभी आप ये समझ सकते हैं. तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये हम सिर्फ सिमिलैरिटीज कह सकते हैं, बट उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर है या इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक हमें कोई ऑथेंटिक नेम्स नहीं मिलते या फिर वहां के लोग यहाँ करके काम किए हैं, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता, तब तक हम नहीं कह सकते कि उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर है. बट देर आर सिमिलैरिटीज इन दिस टू साइड्स. ओके, ऐसा आप कह सकेंगे. Okay, so now we'll start. This is our today's session, Lepakshi paintings. Before starting this, just I want to say that Lepakshi now is in Andhra Pradesh. So when Andhra Pradesh Tourism Development Corporation, this our Telangana Ramappa temple, when it was declared as a UNESCO World Heritage Site, at the same time this heritage sites movement started in Andhra Pradesh, and as per the guidelines of Andhra government, they established one committee, they appointed one committee, heritage committee, and I'm a member of that committee, and in the first meeting of that committee, they organized one lecture regarding this UNESCO World Heritage Sites, State Science Social Role, and it's particularly regarding Andhra Pradesh sites. So at that time, I was made this presentation, and you can see here these 5 important sites which was chosen by the government of Andhra Pradesh. And now here, just before starting the session, we need to study about this World Heritage Site, क्योंकि ये मूवमेंट तो शुरू हो गया. कल हमने अजंता के बारे में भी देखा, मगर यूनेस्को के द्वारा जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आती है. सो हेरिटेज इज आवर लीगेसी फ्रॉम द पास्ट, व्हाट वी लिव विद टुडे and what we pass on to future generations. Our cultural and natural heritage are both irreplaceable sources of life and inspiration. So we need to care these things before study of any UNESCO World Heritage Site. Okay, so it's universal application, and World Heritage Sites belong to all the peoples of the world, irrespective of the territory on which they are located. So on these criterias, government of Andhra Pradesh want to now recognize these all 5 sites as a UNESCO World Heritage Site. Now they are trying for it, and documentation already started over there. Here you can see that the potential heritage sites and monuments in Andhra Pradesh for this World Heritage tag.
I was made this at that time. So now Lepakshi temples, which is in Anantapur district of Andhra Pradesh. So the earliest reference to Lepakshi, which mentions Lepaksha, Papanasha. So amongst the 108 Divya Kshetras, important pilgrimage sites dedicated to Lord Shiva. जैसे हमारे यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग हम कहते हैं पूरे भारत में, वैसे 108 दिव्य क्षेत्र जो भगवान शिव से रिलेटेड है. There are quite a few stories regarding this etymology of Lepakshi. One legend invokes the Ramayana Jatayu, जहां पर रावण सीता को ले जा रहा था, उस समय उसको रोकने का प्रयास जटायु ने किया और वो जख्मी होकर के गिर गया. और जब राम वहां पर आए तो उन्होंने कहा ले पक्षी, माने तो राइज बर्ड, उड़ जाओ. तो दूसरा है कि और एक मीनिंग जिसको हम यहाँ पर ही कहते हैं, नेम डिराइव्स फ्रॉम लेप अक्षी, सो एम्ब्लेम्ड आई. सो दूसरा वाला मीनिंग जो है वो ज्यादा हमारे यहाँ पेंटिंग के रेफरेंस में ज्यादा उपयुक्त हो सकता है. तो पुराणिक लीजेंड्स attribute the temple to the mythical sage of Agastya. However, it was any problem? पीपीटी दिसत नाहीये. Just a minute. अभी दिखाई दे रही है? आता दिसते? यस. हो आता सर. दिसते? आता दिसते का आपल्याला? यस सर. ओके ओके. सो सुरुवातीपासूनच दिसत नव्हत्या पीपीटी? नाही सर. Okay, sorry for that. So just it's started. This is the first slide. This is about the Andhra Pradesh Government Heritage Committee, and then this is the about World Heritage. These 5 sites, and this is the potential heritage sites map. These 5 sites are there. So first is there Lepakshi Temple. So now we are at here. So there are 2 meanings, and then as we mentioned, these Puranic legends attribute the temple to the mythical sage Agastya. However, it was most likely built by Virupanna, an officer in the service of King Achyut Raya and his brother Veeranna. जब भी आप कृष्णदेवराय या फिर विजयनगरा आर्ट एंड आर्किटेक्चरल स्टडी करेंगे, स्पेशली ये सभी उस समय का जो स्थापना से लेकर के लास्ट तक, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट प्लेस के तौर पर लेपाक्षी का अध्ययन किया जाता है. इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना देयर आर 18 such important sites which are related to Vijayanagar Samrajya, Vijayanagar Empire. Okay, so this site also Lepakshi temple, which was built by Virupanna, he was also officer in the service of King Achyut Raya. As we know that there is Achyut Raya complex in Hampi, and his brother Veeranna. The temple has about 20 inscriptions, of which the earliest dates back to 1583. So it has shrines dedicated to Shiva, Vishnu, Papanatheshwara, Raghunatha, Rama, and other deities. Whether it is the smaller carvings on the pillars of the Veerabhadra temple or the monolithic Nandi, said to be the largest in the world. लेपाक्षी टेम्पल लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये लेपाक्षी नंदी टेम्पल और ये पूरा उसका कॉम्प्लेक्स और उसका आजू बाजू का जो अभी गवर्नमेंट ने जिसको बफर जोन के तौर पर चयन किया है. हमको 2 बातें याद रखनी है, द एक्चुअल साइट जहां पर जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स होता है, और दूसरा जो यूनेस्को के रूल्स के अनुसार जिसे हमें बफर जोन कहना होता है. सो दिस एरिया विच नाउ डिक्लेयर्ड एज अ बफर जोन, यानी वो तय किया गया है, नॉट डिक्लेयर्ड, इट्स डिसाइडेड. So here you can see this Lepakshi temple, the entire complex area. So here this Lepakshi temple, Veerbhadra Swami temple, and this is the Nagalinga, that all. Okay, then this is the most famous thing in this Lepakshi temple, Nandi, at this Basavanna temple. It's called as the Basavanna temple. It is around 70 feet length and 50 feet height.
So this is one of the most attraction point. And another is the this here. This is the Shivalinga with this serpent hood. So now we move toward this Veerabhadra Swami temple, Lepakshi, and as we mentioned that this was built by Virupanna, and this is of 1533. So this temple, in this temple, at right angle to the Mukha Mandapa is the shrine of Vishnu facing the east. There is a shrine dedicated to Shiva under the name of this Papa Vinashwara. So here in this temple, as you entered, then you can see this is the Raya Gopuram structure like that, and then Dhwajastambha, and inside, that's the Veerabhadra Swami temple. This is the Lepakshi temple. As soon as you entered in the Lepakshi temple, after crossing the Shivalinga, you will arrive at a structure that looks incomplete. It's a Kalyana Mandapa. This is a marriage hall, Kalyana Mandapa. Just to see the beauty of the sculptures here, and then we move towards the paintings. So as we know about the legendary story, I mentioned already about it. So the Vijayanagara Samrajya may continue to bring these nostalgic memories to all Telugus, by the competing claims from our Kannada cousins. So, but its impact and rich Andhra contributions can't be denied. So, Lepakshi temple stands today as a testament to the cultural efflorescence that accompanied economic, military, and political revival. So, built on a rocky giri known as this Kurma Shailam, and जिसे कच्छप का पीठ जैसे हम कहेंगे. So it is a fragment with Puranic redolence, and here you can see the paintings, the ceiling paintings of the Veerabhadra temple are justly celebrated as the most extensive and best preserved examples of pictorial art in the Veerabhadra temple. Okay, and under Vijayanagara, this is partly because virtually all other evidence of painting from this period have disappeared, including those in the courtly and religious monuments at the Vijayanagara capital, or have deteriorated so severely as to be almost unrecognizable, as on the ceilings of this Chennakeshwara temple at Somapalam, at Chintala Venkatraya temple at Tadapatri. So maybe you know about Tadapatri temple, which is most famous about the Ramayana sculptures are right there. After many years of neglect, the Lepakshi paintings have now been comparatively well restored, and in some sections illuminated by electricity. So, though featured in a number of publications, they have not previously been fully described and mostly illustrated as we have attempted here. So, sorry. The mural paintings here, the Lepakshi temple also has the finest specimens of mural paintings, and the most famous or the biggest one is the 24 by 14 feet fresco of Veerabhadra on the ceiling before the main sanctum. Sanctum is the largest in India of any single figure. Somewhere it's mentioned as largest in Asia also. कुछ जगह पर इसके बारे में मेंशन किया गया है, but I have no any such idea, so हम उसके बारे में इतना firmly नहीं कह सकते. The rest of the frescoes are also beautiful and show an impressive attention to detail with colors strikingly contrasted, black line work against an orange-red background. Now, this is the important thing. Please note this. The rest of the frescoes are beautiful and show an impressive attention to detail with colors strikingly contrasted, black line work against an orange-red background with some green, white, black, and shades of orange gold and brown, mostly applied to a stucco surface, specially treated with lime. So the fresco in the ceiling of Ardha Mandapa, which is said to be the largest, measures 23 by 13 feet. It has frescoes of the 14 avatars of Lord Shiva. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हमारे लिए इसके पहले हम शिव को जो है यानी सिर्फ वीरभद्र और ये छोड़े तो बाकी अवतारों के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, मगर जब ये पढ़े तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट निर्माण हुआ. विष्णु के 10 अवतार हमें पता है, मगर शिव के 14 अवतार जब पढ़ना शुरू किए तो कई सारे अवतारों के बारे में जानकारी मिली. Somewhere it's mentioned as the 19 avatars, somewhere it's mentioned 28 avatars like that. So
चंद्राननार्ध देहाय चंद्रांशित मूर्ते चंद्र अर्कानल नेत्राय चंद्रार्ध शिरसे नमः। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि चंद्राननार्ध देहाय यानी चंद्रानना, तो चंद्र जिसके शरीर पर है यानी मस्तिष्क पर विराजमान है, और चंद्रानना अभी ये भी गौरी पार्वती जो है वो उसकी पत्नी है। चंद्रांश सित मूर्ते यानी चंद्र जिसके मस्तिष्क पर है, चंद्र अर्का नल नेत्राय चंद्रार्ध शिरसे नमः। तो ये इंटरेस्टिंग, जब पढ़ते चलते हैं तब पता चलता है कि कितने तो भी शिव के इस तरह के अवतार है, योग दक्षिणामूर्ति और ये कई सारे नाम यहाँ पर दिए हैं। तो नटराजा वगैरह कुछ हमें पता है, मगर कई सारे नए नए नाम हमें यहाँ पता चलते हैं। एज वी नो द मोस्ट फेमस वन हनुमंता, तो उसके बारे में भी एक ये है कि शिव का अवतार है। सो पेंटिंग मेथड्स की जब बात करते हैं, सो मेथड्स ऑन प्लास्टर क्लॉथ एंड पेपर फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर। So preliminary outlines were made in a light color such as yellow or red, and then flat tones are added. The most common being yellow brown, or arch accents were created in blue, red or green. White was really rarely applied. The plaster, cloth or paper merely being left exposed. Backgrounds were usually filled with flat hues and especially brilliant red or arch. Shading in this modulated tones is not known before 18th century. Black outlines and white highlights were sometimes added at the last stage to give the composition and obviously linear quality. So the paintings in temples, so all these paintings are seen mainly on the ceilings of the mandapas and in the corridors of the temple. In the most of the Vijayanagara paintings, human faces usually appear in the profile. Figures stand with a slight slant with both feet pointing in the same direction. Some of these paintings depict the scenes depict Draupadi's wedding and Kirat Arjuna penance. Few other pictures show Virupanna and Viranna with their sons and guards. They are shown wearing long white robes with a printed cloth around their waist. So it's mentioned as a printed, but is it there or not? So इसके बारे में भी, क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उस समय तक तो हमारे पास नहीं थी, बट जिसको हम कहेंगे कि हाथ से बनाए हुए इसके बजाय जिसको हम कहेंगे कि लकड़ी के जो जिसको हम ठसे बोलते हैं मराठी में, इम्प्रिंटिंग दैट, सो दैट टेक्नोलॉजी यूज्ड देयर। नाउ हियर एज यू एंटर्ड इन द टेम्पल, जब प्रवेश करते हैं उस समय में ये सिर्फ शिल्प देखने में हम लोग बिजी हो जाते हैं, ये ऊपर की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। आप ठीक से देखिए, दिस इज द एंट्री, मेन एंट्री देयर, एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि शुरुआत से ही ये पेंटिंग शुरुआत होते हैं, यानी इसको वेरेंडा पोर्शन कहेंगे, वहां से पेंटिंग सीलिंग के ऊपर शुरू हो गए। नाउ इनसाइड आल्सो यू कैन सी हियर, दिस इज द सेकंड, अगेन द थर्ड। सो इतने लंबे साइज जो अभी जो बता रहे थे कि 14 फीट बाय 28 फीट लाइक दैट, सो ये यहाँ इसका कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन शुरुआत में कई सालों तक ये पेंटिंग जो है वो आज भी यानी टिल टुडे सनलाइट जो है वो तीव्रतम सनलाइट समर डेज में इसके ऊपर जो है काफी असर करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत कोशिश की, और बाद में जो है अभी आज की तारीख में कुछ पेंटिंग्स जो है वो कुछ हद तक अच्छे दिखाई देते हैं। ओके, सम ऑफ देम वी कैन सी हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सुशील कुमार जी ने अपने इसमें शेयर किए थे। और यहाँ पर आप ये रिस्टोर्ड पेंटिंग जिसको कहते हैं, ये कंप्लीटली मैंने जैसे हमेशा कहा है कि आप यहाँ पर जो है उसका ओरिजिनल फोटोग्राफ देख सकते हैं, एंड फॉर द आर्टिकल पर्पज और फॉर द बुक्स पर्पज उसको और ज्यादा वर्क किया जाता है कंप्यूटर के ऊपर, डिजिटल रिस्टोरेशन जिसको हम कहते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ यू कैन सी हियर दिस एंटायर पेंटिंग, इसको बॉर्डर बनाए गए हैं। सो एक भी पेंटिंग ऐसा शायद आपको कहीं मिलेगा कि जिसको बॉर्डर नहीं है, या तो वो समय के अनुसार खराब हो चुका होगा, बट सारे पेंटिंग्स जो है वो कंप्लीटली बॉर्डर उसको बनाया गया है। सेकंड थिंग इज दैट सी दिस अपर साइड पोर्शन एंड दिस डाउन पोर्शन, बोथ इसमें दोनों इसमें अलग अलग रूप का डिजाइन आपको दिखाई देगा। कलर जो है वो भी अलग अलग यूज किए हैं। एक्चुअली आजकल जब हम कुछ इस तरह के बॉर्डर बनाते हैं कंप्यूटर डिजाइन में भी देखिए, हम जो है पूरा एक जैसा ऊपर नीचे साइड में दोनों तरफ में जो है राइट लेफ्ट जो है कंप्लीटली सेम बॉर्डर बनाते हैं, बट हियर यू कैन सी दिस वैरायटी।
इस तरह से मैं मैन्युस्क्रिप्ट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी टू। सो पहली किताब ही मैंने मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी फ्रॉम इंडियन सोर्स के बारे में लिखी थी। तो मेरे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट है, स्पेशली इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट जो मेरे पास कलेक्शन में है, तो भागवत जो है, तो भागवत के दशम स्कंद, हर स्कंद जो है, हर चैप्टर, उसका हर पेज जो है वो अलग अलग रूप से डिजाइन किया हुआ है और वो सेम पीरियड का है। तब देखने के बाद ये पता चलता है, पेपर ऊपर एक बार बनाना वो इजी है, मगर यहाँ पर पत्थरों पर इस तरह से इन्होंने इतना ये सारा सुंदर रूप से बनाया है। एंड यू कैन सी दिस ऑल लाइक, जैसे हमारे यहाँ पर घर में तोरण हम बनाते हैं, उस तरह से यहाँ पेंटिंग्स के लिए भी उन्होंने ये तोरण बनाया है। देन ह्यूमन फिगर्स, और उसको थोड़ा सा और देखेंगे। आपको जो है जितना पॉसिबल है, लेपाक्षी टेम्पल में कम से कम 3 घंटा चाहिए पूरा, अगर पेंटिंग आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर गर्दन करके हर कॉर्नर में ऊपर का जितना भी पोर्शन है पूरा रूप से, नॉट ओनली हियर बट इफ यू वॉच केयरफुली दिस साइड, तो यहाँ पर भी ये पूरी तरह से पेंटिंग किया हुआ है। यू कैन सी दिस साइड आल्सो। और दूसरी बात है कि आप यहाँ पर जितने भी यानी पुरुष, उनके जो चित्र देखते हैं, तो उनके सर का जो मुकुट है, किरीट या टोपी जो भी आप कहेंगे, उसको देखिए, वो बड़े लंबे लंबे साइज के हैं। सो ये अभी जैसे शुरुआत में एक सेंटेंस कहा था, कर्नाटका का इम्प्रेशन जो है वो उसमें हमें दिखाई देता है, क्योंकि कर्नाटक में इस तरह का कैप्स पहनने का सिस्टम, ये विजयनगर कृष्णदेवराय के पीरियड को अगर देखते हैं तो उसके कुछ इसमें हमें ये वर्णन प्राप्त होते हैं। देन here another some paintings. So the paintings cover the ceilings of many parts of the temple as well as the walls of this Veerabhadra shrine, the god to whom the temple is dedicated. So most compositions are laid out on long panels that conform to the columnate base into which the various mandapas, verandas and corridors of the temple are divided. These very particular configurations have resulted in panels with different lengths from about 5 meters to almost 23 meters, and in heights ranging from 1 to 1.8 meter. So again here you can see these paintings. कुछ जगह पर स्पेस यानी हमारा कंप्यूटर स्क्रीन और ये देखने के हिसाब से कंप्लीट ये नहीं था, इसलिए नीचे का पोर्शन कट कर दिया है। बट हियर अगेन एज आई मेंशन्ड बिफोर, तो ब्लैक कलर उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज किया है। जैसे हमने अजंता में व्हाइट कलर को देखा था, जैसे हमने पर्ल्स पर्टिकुलरली देखे, वस्त्रों के इसमें देखा था। सो यहाँ पर जो है आप ब्लैक एंड रेड और जिसको हम वायलेट कलर कहेंगे, तो इन कलर्स को यहाँ पर ज्यादा यूज किया हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ युद्ध के और कुछ किरात अर्जुनीय, अगर उसकी स्टोरी अगर जानते हैं, अर्जुन ने जब तपस्या की थी और उस समय में वराह उसके सामने आकर के खड़ा हुआ और युद्ध के लिए जब वो उठा, तो फिर दूसरा एक बाण उसको लगा और शिव जो है वो वहां पर किरात के रूप में आए थे। तो ये स्टोरी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। तो जब भी आप कभी कहीं किसी मंदिर में जाकर के या किसी केव्स में जाकर के वहां के शिल्पों के बारे में, वहां के पेंटिंग्स के बारे में अगर समझना चाहते हैं, तो जाने से पहले कृपया होमवर्क करके जाइए, उसके बारे में जो भी स्टोरीज है वो पढ़िए। अजंता में जा रहे हैं तो जातका टेल्स और बुद्धा लाइफ जो है उसके बारे में थोड़ा सा ठीक से पढ़ के जाइए, ताकि आप वहां जाकर के वो ठीक से समझ पाएंगे। उसी तरह से लेपाक्षी टेम्पल में जब जाते हैं तो थोड़ा सा हमारे एपिक्स और पुराना स्टोरी जो है उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है, तभी जाकर के हम इन पेंटिंग्स को समझ सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ही देखेंगे तो लगेगा कि कोई जंगली लोग युद्ध कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ हमको वहां जाकर के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ ये दिखाई देगा, ये हाथों में जो है एक धनुष्य लिया हुआ है और यहाँ पर भाता जिसमें सारे बाण रखे हुए हैं, ये दिखाई देगा, और पीछे कुछ और लोग हैं। बस इतना ही, इस तरह से हम ये कह सकते हैं जब अगर हमें इसकी स्टोरी अगर पता नहीं हो। So, except for this curved dome that roofs its central hall, the ceiling of the Natya Mandapa preserves an almost complete set of paintings. So, panel 7 to 11, जैसे कल हमने देखा था कि left wall, right wall, or wall number first, painting number first, like that. So, here are also the panels. So, the Mahamandapa ceiling is of the exceptional interest for the size of its central composition, and so here the central composition, so it's used as the C1. Okay, so by far the largest at Lepakshi,
This depicts the colossal figure of the Virabhadra flanked by the temple donor identified as Virapanna and his wife together with the Ram headed this patriarch Daksha at the god's feet. The techniques and the condition and style here, the studies of the Lepakshi ceiling paintings such as that given by Kameshwar Rao, this is an excellent one, 1982, reveal the method of their execution. Before applying the plaster, the granite surface of the horizontal ceiling slabs was rendered smooth by rubbing. The plaster was obtained by mixing sandy clay gathered from river beds together with red ash and lime powder. These ingredients were finely ground and mixed with honey or liquid with molasses before being applied to the granite surface to a thickness of about 3 millimeters and given a final polishing with a trowel. This means that the paintings cannot be considered true frescoes since the pigments were only added after the plaster base had fully dried. यहाँ पर कई स्कॉलर्स के कंफ्यूजिशंस है. आप अगर किताबों को पढ़ेंगे तो पिगमेंट्स के आगे क्वेश्चन मार्क वहां पर दिए है. So the preliminary sketches for the scenes were drawn first in red ash and then colored and finally finished with black outlines. So the palette was extremely varied in tone, employing earth red, black, green, yellow ash, and different shades of white and gray, occasionally a bluish green. Then here you can see some of the close-up of these paintings. यहाँ पर अभी जैसे कहा तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि ये फिगर्स उसका ये क्लॉथ्स और ये एक एक पेंटिंग देख के कल जैसे मैंने कहा था आपको इस पेंटिंग में क्या दिखाई देता है ये आपको नोट डाउन करना है कि हमें इसमें से क्या समझ में आता है. कोई एपिक स्टोरी आपके समझ में आती है या कुछ फिगर्स आपको दिखाई देते हैं, उनके किरीट, उनके ऑर्नामेंट्स, उनके कॉस्ट्यूम डिजाइन्स, उनके कुछ अगर पैरों में अगर कुछ उन्होंने पहना है तो आप समझ सकते हैं. यहाँ अगर आप ठीक से देखते हैं बहुत बारीकी से दिस पोर्शन, शायद आपको ये ठीक से दिखाई दे रहा होगा, तो पैरों में जूता आपको ठीक से दिखाई देता है. सो जैसे हमारे यहाँ पर रामप्पा टेम्पल का हाई हिल सैंडल जो बहुत फेमस है, तो वैसे जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तब आप इसका वर्णन लिख सकते हैं. उसी तरह से आप यहाँ का पीछे का पोर्शन देखते हैं तो जैसे लगता है कि विंडो है और विंडो के ऊपर जो विंडो का पोर्शन है और उसके बाजू में एक है. सो जो भी आपके आंखों को दिखाई देता है वो नोट करना है. बचपन में आदत थी, संग्रहालय को जब जाते थे या किसी टेम्पल को जाते थे हाथ में एक पेन और नोटबुक लेकर जाते हैं. जैसे बड़े हो गए ना, स्कॉलर बन गए, पेन और नोटबुक लेना भूल जाते हैं. छोटा डायरी एटलीस्ट जो है जेब में रखते जाइए और जहां पर जब भी पॉसिबल हुआ तो लिखते जाइए. पेन और नोटबुक हाथ में रख के लिखना कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि किताब पढ़ने के बाद भी एक्चुअली मैं जब वहां जाकर के वो देखूंगा तब मुझे क्या दिखाई देता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. ओके, सो यू प्लीज नोट डाउन दैट. अभी मैं यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स दिखा करके जो है आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो. इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट. मैं यहाँ पर जस्ट अ मिनट, आई विल अनम्यूट. सभी को मैं अनम्यूट करता हूं और फिर हम जो है बात करेंगे 1 मिनट, क्योंकि सिर्फ पढ़ना आवश्यक नहीं है, इंटरेक्शन आवश्यक है. जस्ट अ मिनट. क्या हो गया बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ अभी ये पेंटिंग देख करके या इस पेंटिंग को देख करके आपके क्या समझ में आता है, कृपया कोई भी बताइए. एनीवन जो आपको दिखाई देता है, नॉट द स्कॉलर्स. They are decorating a bride. जस्ट अ मिनट. वेरी सॉरी. द्रौपदी वस्त्रहरण का प्रसंग है. जस्ट अ मिनट. नहीं, पार्वती विवाह का प्रसंग है. गिरिजा कल्याणम है. गिरिजा कल्याणम में उनकी साड़ी देख रही है. आप लोग सुनने के लिए थोड़ा तैयार रहिए. थोड़ा मैं जो कह रहा हूँ क्षमा करें. स्टूडेंट्स जो है, कॉलेज स्टूडेंट जो है, कृपया वो पहले बात करें, फिर जो सीनियर्स है वो लोग बात करें. क्षमा करना. थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर ये कहूंगा, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स है वो अपना साउंड ऑन करें और बताएं. कॉलेज स्टूडेंट जो है, कोई भी कॉलेज स्टूडेंट, एनीवन जो दिखाई देता है उसके बारे में बात करना. Sir, this scene
Actually, looks like a marriage ceremony, and the women are wearing white clothes, Okay. and their hair is like hair buns, just like Ajanta's, which you White saw. cloth, the hair looks like the Ajantas, and And everyone's wearing white clothes, and okay, white cloth. Okay, huh. The bride is differed from bridesmaids Before, with respect to very cloth. humble request to all of you. Before saying any description, please say your name and your institution name. Please. Oh, hi, I'm Ramya. I'm from Aurora Design Institute, Architecture College at Hyderabad. Okay. I can see a bride getting ready with the help of her bridesmaids. Okay. And how the bride is differed from other people is she wore a very royal navy blue colored sari, and all the bridesmaids were colored in the same color white. Okay. And anything else? थैंक यू बहुत ही अच्छा. और कुछ दिखाई देता है आपको यहाँ पर? Anyone else? हेलो सर. Yes, students. Yes. हेलो सर. सर जी. नमस्ते. मैं नमस्ते. राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रही हूँ. जी. आपका नाम? सर मुझे मैं स्वाति अग्रवाल बोल रही हूँ. जी. मुझे ब्राइड की चोटी गुथी हुई दिख रही है और लोग और जो स्त्रियां हैं और उनके जोड़े बने हुए हैं. उनके जोड़े बने हुए हैं और ब्राइड है जो उसकी चोटी गुथी हुई लग रही है. ओके ओके, थैंक यू. और कोई कुछ कहना चाहता है? मैंने पर्टिकुलरली ये पेंटिंग देख करके आपको बोलने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि ये ठीक से दिखाई देता है, इसलिए. एनीवन एल्स? स्टूडेंट्स, देसाई कॉलेज का कोई स्टूडेंट? कोई भी अपना साउंड ऑन करे, मराठी में बताइए, हिंदी में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है. जिस लैंग्वेज में आप बताना चाहते हैं बता सकते हैं. एनी अदर स्टूडेंट्स? I guess the bride is carrying a mirror. Please say I your have seen this kind of mirror in Salarjung Museum at Hyderabad. Please say your name and institution name. I'm Ramya, the same Aurora Design Institute. Okay. So anything else? अभी scholars की बारी. ठीक है. Okay, one by one, but please. Scholars. Namaste, sir. I am Dr. Ritu Punya from University of Rajasthan, Jaipur. सर जो क्लोथ्स है उनमें सभी पेंटिंग्स में जो आपने पहले दिखाई और जो अब दिख रही है हमें, सब में ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स का ज्यादा यूज किया गया है. Okay, so nice. Another thing. Sir, I'm Murali Krishna. जी sir. The painter mainly focuses on showing various types of hairstyles. So nice. Okay. And one more thing I have observed, sorry to say that, most of the bridesmaids are topless. That means around 1500 years back, they may not wear the blouses, it seems, sir. Yeah. It is a culture, I think. Yeah. These two I have observed. Thank you, sir. These paintings are around 400 to 500 years back, and Ajanta paintings are around 1500 years back. But till then, you can see the similarities in these both. Thank you. Yes, Thank you, Krishna ji. Thank you. Anything else? इसको छोड़ करके और किसी को कुछ कहना है? Any scholars? The designs on the sari designs. Sari It's design. a different, yeah, and hairdos and actually color combination. Yes, color combination. Yeah, okay, so Yeah. nice. So सभी लोग जो है ये नोट कीजिए. Yes, please. हाँ. सर वंदना अग्रवाल फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी. जी. सर ये दो औरतें यहाँ इम्पोर्टेंट हैं. अब ये दो औरतें और एक की चोटी गुथी हुई है जी. और एक की चोटी बनाई जा रही है जी. और बाकियों के बंस हैं. जी. तो ये थोड़ा इसमें दो औरतें इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सारी मेड्स हैं. जी. तो दो औरतें, मेरे को ये दो औरतें और इन्होंने पूरे फुल कवर्ड कपड़े पहन रखे हैं. जी. तो यहाँ
शायद आपका स्क्रीन अगर आप उधर जूम करके देख सकते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं राउंड, जिसको हम कहते हैं ना कि नेक जैसा, हमारे यहाँ मराठी में कहते हैं गोल 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 गळ्याचा ब्लाउज। सो राउंड नेक जैसा ब्लाउज जो है उन्होंने पहना है यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर देखते हैं ये फुल ड्रेस उन्होंने पहना हुआ यहाँ दिखाई देता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर आप जो है जो अलग अलग पॉइंट्स जैसे बताए, तो इसमें कई सारे आप ये देखते हैं कि साड़ीज का सिर्फ देखिए, पैटर्न देखिए उनके कि कितने अलग अलग पैटर्न साड़ी के यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिर्फ एक ही इसको अगर आप अध्ययन करेंगे तो सी एक के साथ दूसरा जो है वो कोई भी सेम नहीं है। सी ईच एंड एवरीवन, कोई भी साड़ी देखिए या कोई भी वस्त्र देखिए, उनके पैटर्न्स को देखिए, एक भी एक दूसरे जैसा नहीं है। सो इट मीन्स द वैरायटीज ऑफ द साड़ीज। ओके, एंड ऑर्नामेंट्स को भी थोड़ा सा देखिए, किसी ने ऑर्नामेंट्स के बारे में नहीं कहा, इतने सारे ऑर्नामेंट्स आपको दिखाई देते, यानी हाथ की चूड़ियों से लेकर के गले में जो नेकलेस पहने हुए हैं, ये सारे सारे अलंकार जो है, और ये ऊपर भी जिस तरह से पहने हैं, तो ये रिंग्स वगैरह जो यहाँ दिखाई देते हैं, सो ये अलग अलग ऑर्नामेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं। देन अगेन कलर कॉम्बिनेशंस की बात है, तो ये छोटी छोटी बातें जो भी आप ये देख रहे हैं, तो इसको नोट करते जाइए, ताकि आगे चल करके आपने वहां क्या देखा वो, और किस कलर का आर्टिकल पढ़ेंगे या किसी किताब को पढ़ेंगे तब समझ में आया, अरे अच्छा मेरा तो उसको म्यूट रखिए। कोई कुछ कहना चाहता है? Yes, sir. Good evening, sir. या गुड इवनिंग जी। Yes, sir. So I am intrigued by the. So I'm a student at DU. So I am intrigued by the mudra, the last lady in the entire assemblage of women. She's doing a mudra with her hand, and it seems to be touching a chandelier, एक झूमर जैसे. Yeah. It looks, yeah, ऐसा वो प्रतीत होता है कि कोई वो झूमर है या. So, and also it seems to me that maybe she has vitiligo on her body, because she's shown to have a dusky complexion, and maybe it could be the blurring of the colors in the painting, but she has these light white spots on her body and face. ओके ओके, सो जो भी आपने नोट किया, जो भी आपको लगा कि हाँ ये हो सकता है, तो वो आप जरूर लिखिए, आपके नोटबुक में लिखिए, ताकि आपको भी ये पता चले कि आगे जब इसका कोई डिस्क्रिप्शन आपके पास आएगा तब हम कितने सही थे, या हमको क्या और देखना चाहिए था, उसमें क्या चेंजेस थे, उसको आपको देखना है। ओके, सो sir, one more thing would like to say, the second maid holding fan in her hand. Yeah, so and that nice. is very interesting thing I noticed. Here also, and here Yeah. also you can see the back one also. Yeah. Okay. And here in her hand, बाजूबंद उसके हाथ में है। ये लेडी भले ही वहां पर ये कर रही है, मगर उसके हाथों में बाजूबंद भी है। सो ये भी यहाँ आप देख सकते हैं। देन अगेन यहाँ पीछे वाला, इसके बारे में किसी ने वर्णन नहीं किया। यहाँ पर एक मेल खड़ा है जिसका किरीट देखिए, वो हाइट, और उसके वस्त्र देखिए, पीछे उसका जो सोगा कहते हैं, तो ये पीछे आया हुआ है, और उसका धोती जो है पैरों में जिस तरह से पहना, उसके ऊपर का पैटर्न भी हमें दिखाई देता है। तो इसके नेकलेस वगैरह भी थोड़ा सा ये भाग पोर्शन दिखाई देता है। अब इसी पेंटिंग को हम थोड़ा और क्लोज से देखेंगे। ओके, सो आप देख रहे हैं। नाउ कैन एनीवन अगेन डिस्क्राइब अबाउट दिस? अब कुछ कहेंगे ये थोड़ा और ज्यादा क्लोजअप से? जी हाँ। So it's Ramakrishna from HVDC College. जी। Sir, the third maid is color complexion is shown, sir. The first was fair and third is like a dark color. Yeah. And they're helping bride for doing hair. Yeah. What can you say about that? अभी आप इनको देख के आप क्या कह सकते हैं? आपने कलर के बारे में कहा, इट्स ओके। Then what's the conclude remark about this? You can say that there is equality. They are not discriminating her. There is clerk. No, not discriminating, but you can say that they are from the different prevalence parts of India.
Different culture and different races you can see. हाँ, yes, from the different locations. आप उनका बॉडी पूरा शरीर रचना अगर देखेंगे एनाटॉमी, तभी पता चलेगा कि इनका हाइट्स में भी अगर देखेंगे, अभी ये तो कमर में झुककर खड़ी है, बराबर है ना, एक हाथ उसमें ऐसे है, वो झुककर खड़ी है, फिर भी उसका हाइट देखिए कंपैरेटिवली वो ज्यादा दिखाई देता है, और वो सबसे नीचे खड़ी है, फिर भी हाइट ज्यादा है। सो इससे हमें पता चलता है कि डिफरेंट लोकेशन से ये लोग आए हुए हैं। ओके, और सर थर्ड वाले के ज्वेलरी के लिए फ्लावर्स भी यूज किए। तो नाइस, ओके, एनीथिंग एल्स? नमस्ते सर, मैं अर्चना तिवारी, राजस्थान यूनिवर्सिटी। सर मुझे सब में कॉमन चीज ये नजर आती है कि जितनी भी इन्होंने साड़ी पहनी हुई है महिलाओं ने, इन सभी साड़ियों में भी बॉर्डर बनाया गया है, वो भी अलग अलग तरह का बॉर्डर बनाया गया है इसमें। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी पेंटिंग में भी सर बॉर्डर बनाया है, और बॉर्डर में ब्लैक और लाइट कलर का यूज किया है। और ये जो मेड जैसी दिखने वाली महिलाएं हैं, ये भी पूरी तरह से सजी हुई है। एक्चुअली एक वर्ड याद रखिए कि मेड हम शब्द नहीं यूज करना है, जब आपको कंफर्मली पता होगा कि वो मेड है तभी आप मेड बोले, अदरवाइज these all ladies ऐसा आप कह सकते हैं, these all female लेडीज। एक्चुअली सर एक जैसे पंखा जल रही है, एक चवर जल रही है, और इन सबकी साड़ियां लगभग एक जैसे कलर में हैं, लेकिन इन सबकी साड़ियों के डिजाइन्स और बॉर्डर, मेरा मेनली कहने का मतलब ये था कि साड़ियों में बॉर्डर जरूर बनाया गया है, इनकी में डिजाइन्स है, लेकिन बॉर्डर को महत्वपूर्ण माना गया है इस पेंटिंग में। जी। और यहाँ और किसी बात को आप यानी नोट करते हैं कोई? सर यस जी, दिस इज मिस्टी, एंड जो थर्ड वाली लड़की के ज्वेलरी के लिए फ्लावर्स यूज किए हैं। जी, ओके, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? सर हेलो वन बाय वन जी। So the ornament which is the ornament which is shown in the so these are white in color, so can we say it is it might be pearls? It might be pearls, false? No, हीरे जवाहरात type? नहीं, ऐसा false तो नहीं कह सकते। Okay. So from Rajasthan the University, ornament which has been shown in white in color, so just a minute, moti and everything. गुड इवनिंग। जस्ट अ मिनट, मैं सभी को ये पहले कहना चाहता हूँ, कृपया थोड़ा कभी कभी हम कहते हैं ना मॉरल थिंग्स क्या है उसको भी समझिए, कि जब कोई बात कर रहा है तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पास उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी है, मैं भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर प्रेफरेंस मैं थोड़ा सा दूसरों को अगर देता हूँ तो उसमें भी खुशी है। सो वन बाय वन, एक के बाद एक प्रयास कीजिए, एक साथ में अगर करेंगे तो आवाज ठीक से नहीं सुनाई देती है, क्षमा करना। अभी मैं फिर अनम्यूट करता हूँ, एक के बाद थोड़ा कृपा करके दूसरों को ध्यान देके फिर करें। यस, ओके, ये एक सर ये लोग, हाँ सर मैं मोनिका बोल रही हूँ कानपुर से। सर ये लेडीज जो है टॉपलेस नहीं है सर, ये लोग इनके जो कपड़े हैं, इनके जो बहुत झीने कपड़े मतलब पहनाए गए हैं ताकि इनका चेस्ट और सब दिखाई दे अच्छे से। आई थिंक ओके, जो भी पॉइंट्स है नोट कीजिए। यस, ओके, एनीथिंग एल्स? Sir, this is Ishita and I'm a student of Delhi University. Sir, I can see that these women are barefoot. Okay, yeah. Thank you. Anything? Good evening, sir. Yeah. This is Prachi Joshi from Dombivli, Maharashtra. One thing I would like to share it regarding this painting. I see bugdi-like earrings in ears of these three women. And the amazing thing is, even after so much of centuries, the fashion of bugdi still continue. So this is like a cultural continuation of India, I must say. And till today, it's continuing in our Pune and Mumbai also. Yes. सर ये लोग पैरों में भी पायल पहने हुए हैं। जी हाँ, पायल वो टाइप का कुछ। जी, और देखिए कि इनका बॉडी जिसको हम कहते हैं ना कि
इनकी आंखों की तरफ ध्यान दीजिए। सभी लोग जो है ना एक तरफ ही बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है ना उनकी आईसाइट को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसा लगता है कि पूरा तीनों की आंखों को ठीक से देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये किस तरफ देख रहे हैं। एक लकीर अगर खींचू या कहीं पर एक डॉट दे दूं तो बिल्कुल समझ में आएगा कि वो सबका ध्यान उस तरफ में है। सो ये कलाकार ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर दिखाया है। ओके, यहाँ पर आप जो है चोटी जो है वो देखिए, उसका स्टाइल यहाँ पर चोटी का इस फोटोग्राफ में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो लाइक दैट, these are few points and you all covered many such points. Thank you जी। यस सर ये साड़ी भी ऑलमोस्ट सभी लोगों ने एक ही पैटर्न पे पहनी हुई है। पैटर्न पे? हाउ कैन यू से? एक ही पैटर्न पे पहनी हुई है। सर कुछ ने बस अपना चेस्ट ढक रखा है, बाकी तो सभी लोगों ने साड़ी ऑलमोस्ट जो आगे का जो नीचे का हिस्सा हम देखें तो नीचे के हिस्से में ऑलमोस्ट एक ही तरह से रैप की हुई है। अभी एक मिनट, ये लास्ट वाली लेडीज को देखिए, फिर उसके बाद सेकंड वाली लेडी को देखिए, इसमें आपको ऐसा लगता है? फिर उसके बाद इस लेडीज को ठीक से देखिए और इस लेडीज को ठीक से देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सेम है? दिस वन केयरफुली ऑब्जर्व दिस एंड दिस, तो क्या एक ही स्टाइल है? रैपिंग तो सर, हाँ सर, जो साड़ी एक तरह से ड्रैप जो की है तो वो एक ही पैटर्न से शायद की है, मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है इसमें। ओके, ये इस सब्जेक्ट का मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मे बी जो लेडीज है वो ज्यादा जानती है, क्योंकि किस तरह से उसको साड़ी को कैसे लपेटना है, अलग अलग स्टाइल अगर रहते होंगे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं। हियर वन मोर थिंग यू कैन ऑब्जर्व दैट, बाकी सभी से जो है इस लेडीज को अगर आप देखेंगे, सो शी इज नॉट मेड, ये बाकी सबकी तरह नहीं है, ये उसका कुछ अलग ये पूरा दिखाई देता है। सो ऐसी कुछ बातें हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ हियर यू कैन सी, अब स्पेशली जो स्टूडेंट्स है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप क्या देखते हैं कृपया बताइए। स्टूडेंट्स, एनी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज से अबाउट दिस। Hello, sir. जी, Hello, sir. I'm Prasanna from Deccan College. I think, sir, it's a painting of Shiva. Yes, so nice. Can you, because he wear describe about this something? I can't see his that cloth of the tigers. Yes, this is a Vagrajina. Okay. Vagrajina. Yes. Yeah. Sir. And tiger skin. Yes. Tiger skin. Yeah. Another. You can see here. Sir, so there. सर इनके गले में भी इनके स्नैक है। सब भुजंगा। ओके, इसका नाम भुजंगी है ना? Yes, sir. Yes, my name is also Bhujanga, so I am interested in this. Yes, okay. Anything else? Left side we can see Lord Vishnu catching a lotus in his hand. So nice, so nice. Okay. So is it Lord Vishnu or Lord Brahma? Can you please say? Vishnu, his blue color, the blue color of the face depicts Lord Vishnu. Okay. And anything else you can observe here? और ज्यादा कुछ? हनुमान जी भी है जी, आपकी आवाज? सॉरी सर, हनुमान जी भी है इसमें। कौन है? हनुमान जी, नीचे की तरफ हनुमान जी भी हमें दिखाई दे, रेड कलर में। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, और कुछ? देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, ये बातें मैं अगर कह दूं तो आपको याद नहीं रहेगी, मगर आप जो कह रहे हैं वो आप नोट कीजिए, सब लोग नोट कीजिए, जो भी दिखता है उसको नोट कीजिए, ताकि अजंता के पेंटिंग्स कल आपने देखे, अगर आज मैंने अगर पूछा आपको कल आपने क्या क्या देखा, कोई भी नहीं बता सकेगा। 2-4 जैसे मैंने कहा था ना, पद्म पाणी, बोधिसत्व, वज्रपाणी, और उसको छोड़कर 1-2 पेंटिंग याद रहेंगे, बाकी सब कुछ दिमाग से चला जाता है। मगर आप खुद जिसको गौर से देखते हैं, लिखते हैं,
बोलने का प्रयास करते हैं तब वो याद रहता है। सो कृपा करके कोशिश कीजिए। अभी इनके सभी के कॉस्ट्यूम्स के बारे में कुछ कहिए, यहाँ पर जो है या यहाँ जो खड़े हैं इनके कॉस्ट्यूम्स के बारे में कुछ कहें। एनीवन, एनी स्कॉलर्स? हेयर स्टाइल को देखिए सभी के, पीछे वाला जो डिजाइन थे। Sir, on Shiva's mat, Lord Shiva's mat, there are sitting some in the pose of yogasana. Yeah. I guess I see their faces as lion faces. Okay. Okay. Thank you. Anything else? इन सभी के वस्त्रों को देखिए। Sir. जी। Sir, the last fellow from the right hand side, the artist has attempted to show his eye direction completely different from where everybody else is looking. Yeah. Okay. Okay. You want to say about this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. Yeah. And because he's the only one who's not appreciating the divine presence of Shiva. You see, this is a small part of a big painting. It's actually long painting, but उसमें से एक छोटा सा पोर्शन हम देख रहे हैं। पीछे वाला हिस्सा भी जब आप देखेंगे तब आपको स्टोरी का कंटिन्यूएशन पता चलेगा। That time you can again change your opinion as per the another view. Okay, so you can see here पायजामा आपको दिखाई दे रहा है, सबका पायजामा, सबका कुर्ता, ऊपर तो कुर्ते का कोई हिस्सा ज्यादा नहीं दिखाई देता है, ऑर्नामेंट्स और ये दिखाई देते हैं, मगर सबका पायजामा जो है वो ठीक से दिखाई देता है। यहाँ का स्टाइल बिल्कुल अलग है और यहाँ का स्टाइल देखिए ये बिल्कुल अलग है। तो ऐसी कई सारी अलग अलग बातें हैं जिसको आप देखना है। और दूसरी बात है कि शिव का जो अवतार है उसको जब देखते हैं तो त्रिनेत्रा से लेकर के उनका सभी जो भी हैंड्स और ये सभी जो दिखाई देता है, तो विवाह के लिए तैयार है शिव अभी। ओके, पाणी ग्रहण विधि जो है उसके लिए तैयार है। ये अलग अलग पेंटिंग्स इसके जो है इस तरह से यहाँ दिखाए हैं। अभी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अभी मुझे कोई बताएं इसके बारे में थोड़ा सा। एनीवन ट्राई फॉर दिस, क्या दिखाई देता है आपको? एनीवन? विवाह हो रहा है। विवाह हो रहा है। सर ये दक्ष प्रजापति दिख रहे हैं। The horse-faced one is Tumbura. Okay, yeah. Okay. Horse-faced one is Tumbura, I think. Yeah, okay. और कुछ? Sir, Vaishnavi here from HV Desai College. जी। Sir, right side में नंदी जी जो है वो है वहाँ पे, और मिडिल में ठीक है, लेट इट। आपको ऐसा लगता है कि ये नंदी है, आप इसके बारे में कह रहे हैं या लास्ट वन? नो सर, वन जो अभी आप, हाँ दिस वन सर। ओके, आप समझते हैं कि ये नंदी है और सर ने अभी शुरुआत में बताया ये तुम्बर है। ओके, सो नारद तुम्बर। ओके, सो तुम्बरु। ओके देन, ओके नो प्रॉब्लम। ओके, अभी कोई और दूसरा सर कुछ जी। ये सर दक्ष वाली, जैसे महादेव की बाद में पूजा हो रही हो, जब दक्ष को उन्होंने वो दे दिया था, वो वाली स्टोरी शायद लग रही है ये। बिल्कुल सही बात है, मगर थोड़ा और कुछ दिखाई देता है क्या आपको यहाँ पे? ये किसी ने कहा कि ये विवाह हो रहा है। महादेव के तिलक लगा रही हैं एक जो लेडी है जी। मे बी शी इज पार्वती। तिलक, ये पार्वती नहीं है ये, बिकॉज मुकुट इज देयर। ये वो जो सती की जो माँ थी वो हो सकती है। अच्छा, ओके। देखिए मैंने जो कहा है, आपको जो दिखाई दे रहा है ना उतना बताएं, ताकि स्टोरी क्या है उसके पीछे का वो तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ में, या उसके जो भी बाकी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा। हमें जो दिखता है हमारी आंखों को उतनी चीजें तो भी हम बताएं। यहाँ आप देख रहे हैं इनके हाथों में कुछ है, शिवजी भी जो है कहाँ से ये कुमकुम कुछ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कोई पात्र है, दिख रहा है ना, पंचपाद जिसको हमारे मराठी में कहते हैं, ऐसा कोई पात्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो यहाँ पर जो जिस तरह से उंगली उसने किया है,
अभी मानो जैसे वो सिंदूर लगाने जा रही है, ये जो दिखता है ना वो बताइए। सर जैसे इन सब ने जो कपड़े पहने हुए हैं उनका जो पैटर्न है वो मतलब जैसे फ्लावर्स से बनाया हुआ पैटर्न नजर आ रहा है। जैसे पिछली पेंटिंग में लाइनिंग्स का ज्यादा यूज किया था, इसमें फ्लावर्स का ज्यादा यूज किया है। और जो इन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने हैं, तो जो तिलक लगा रही है उनके और शिव जी के आप गहने देखिए, मतलब रेड कलर में, और बहुत सारे गहने जो पहनाए हुए हैं उनको। बाकी शिव जी के अमूमन गहने नहीं पहने होते, लेकिन इस पेंटिंग में बहुत सारे गहने इन्होंने पहने हैं। जी। और पैटर्न जो इनके कपड़ों का जो पैटर्न है वो लगभग सेम नजर आता है इसमें। जी, ये चित्र को देखने के बाद मुझे ये समझ में आया। मुझे बड़ा दुख होता था जब मैं शादियों में जाता था, मुझे ऐसा लगता था कि दूल्हा और दुल्हन को छोड़ के, है ना, वो भी सजते हैं, मगर बाकी जो है दुल्हन के जो भी साथ में आने वाले, दूल्हे के साथ में आने वाले, वही इतना सज धज के आते हैं। ये मेरा वहम था, गलत फहमी थी, ये देखने के बाद मुझे समझ में आया। यहाँ देखिए ना, इनके ऑर्नामेंट्स को भी देखिए थोड़ा, इतने सारे ऑर्नामेंट्स इन्होंने भर भर के पहने हुए हैं, दिख रहा है ना, इतने सारे ऑर्नामेंट्स है। सी केयरफुली। और कंपैरेटिवली लेडीज को देखने के बाद, ये पीछे वाली जो लेडीज है उससे यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट्स दिखाई देते हैं। दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग हियर। ओके, तो ऐसी कुछ बातें, साड़ियों के पैटर्न वगैरह जो है उसके बारे में आप देख सकते हैं। नीचे वाला ये जो है उसके बारे में आप कह सकते हैं। पीछे जो तोरण की तरह ये जो कपड़े जिस तरह से बांधे हुए थे, तो उसको आप देख सकते हैं। ओके, नमस्ते। अभी वही चित्र आप थोड़ा और क्लोजअप से देखिए। अभी जो बात कर रहे थे उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। नाउ सी हियर ब्यूटी ऑफ दिस पेंटिंग, जो हम बात कर रहे थे ना, क्लोजअप व्यूज जब देखते हैं ना, और ज्यादा कई सारी बातें हमें पता चलती है। ये सब आप कुछ कहना चाहते हैं? Yes, sir. जी बोलिए। Yes, sir. So, I'm intrigued by two things. So, first is that the artist has shown the facial features of Shiva and other characters. For example, even if the right entity is Nandi, so he has shown their features to be very soft. Like the face of Shiva is shown to be soft, much in contrast to जैसे उनको हम समझते हैं, very powerful and a destroyer like that. So very soft and fleshy cheeks, and even the Nandi's face is shown to be very kind looking and very wrinkly in a way. Sir, here I want to say one thing, sir. Just a Nandi, minute. it is not. Just a minute, please. आप कहाँ से हैं? पहले जिन्होंने बात की अभी? Yes, so I'm from Delhi University. I'm doing, yes sir, I'm studying history here. For your kind information, if you visit the temples of Karnataka, or particularly Karnataka, because I was usually visited the temples of Karnataka, तो अगर आप यहाँ पर शिव की मूर्तियां देखते हैं, पर्टिकुलरली मैं सिर्फ बेलूर और हड़ेबीड की भी अगर बात करूंगा, तो हड़ेबीड टेम्पल राइट साइड में, या बेलूर का टेम्पल जो है, तो यहाँ आपको शिव जो है मैक्सिमम प्लेसेस पर उग्र रूप में नहीं दिखाई देंगे, वो शांत रूप में दिखाई देंगे। शुरुआत में भी जो हमने कहा था, ये 14 अवतार जो है शिव के, वो यहाँ दिखाए है। सो रौद्र रूप जो है काव्य के नवरसों में, रौद्र रूप जो है वो आपको यहाँ बहुत कम दिखाई देता है, यानी यहाँ इन पेंटिंग्स में तो वो नहीं दिखाए है। जी यस सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? Sir, I'm Murali Krishna. Sir, here it is not Nandi, sir, because Nandi cannot sit besides the Shiva. Yeah, very true. Tumbura is the Raja Purohit of this marriage, it seems. Yes, very true. So Very true. he's blessing the couple. Yeah. If she is Parvati, he's blessing the couple. It is Tumbura only, not Nandi, because he is Yeah. subordinate to Shiva. He cannot sit beside Nandi, Shiva. Yes, thank you So sir. sir, जी सर मुझे यहाँ पे शिव जी के 4 हाथ दिखाई दे रहे हैं, जिनमें 2 हाथ में उन्होंने अस्त्र धारण किए हुए हैं जी। और प्लस मुझे ये जो बैकग्राउंड है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई अग्नि जल रही है पीछे की साइड, या फिर सती का जो विध्वंस हुआ था, सती ने आत्मदाह किया था, नहीं, ऐसे तो नहीं ये है, सारा इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ जो है ना, बैकग्राउंड कलरिंग के लिए वो कलर यूज किया है, बट दैट सीन इज नॉट एट हियर। ओके सर। यस, ओके। अभी ये पेंटिंग देखने के बाद आपको कलाकार की कलाकारी, ये सुंदरता जो है
द ब्यूटी ऑफ दिस पेंटिंग्स। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये छोटी छोटी बातें जो है सारी, अभी आपने जो पॉइंट्स कहे उसको आप लिखिए। बैंगल्स का ये देखिए, उसमें जो रेड कलर के आपको जो मणि, जो जैसे कल हमने ब्लू कलर, पर्शियन ब्लू कलर वगैरह पद्मपाणि बोधिसत्व के इसमें देखे थे, वैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो आपको समझ में आता है वो चीजों को देख के आपको नोट करना है। और कई सारे पॉइंट्स कई सारे स्कॉलर्स ने बताए, तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो आप बता रहे हैं वो आपको हमेशा याद रहेगा, ये उम्मीद करते हैं। देखिए, मैंने जितना ज्यादा क्लियर हो सकता है उसको दिखाने का प्रयास किया है ना। अभी शुरुआत वाला पहला वाला जब देखते हैं उससे थोड़ा और ज्यादा। तो अभी शिव की आंखों को भी देखिए, यहाँ ऐसा लगता है कि देख रहे हैं। अगर थोड़ा सा, जैसे अभी दिल्ली से जो दीदी ने अभी बात की है, तो उग्र थोड़ा सा चेहरा उसका बन रहा है क्या, ऐसा लगता है। यहाँ थोड़ा बहुत कम दिखाई देता है, यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई देता है, बट द बैकग्राउंड वो नहीं है, इतना याद रखें। अभी यहाँ देखिए, मैंने शुरुआत के इसमें भी सिर्फ यहाँ तक हम देख सके थे, 2 लेडीज तक। उसके पीछे भी देखिए और भी लोग हैं, और इनके वस्त्रों को देखिए, ये मृगाजिन पहना हुआ है। सो लाइक दैट, ये वस्त्र और उनके गले की जो मालाएं हैं, इसको देख करके समझ सकते हैं ये अलग अलग इससे आए हुए लोग जो है, उनके कलर्स और ये देख के भी तो ये समझ सकते हैं उनके बाल वगैरह जो है। सो गण, ऐसा कुछ जगह पर उसका जो स्कॉलर्स ने जो लिखा है गण, ऐसा ये किए है, बट वर्णन जो है उसका क्लियर जब तक हमको प्राप्त नहीं होगा तब तक तो हम उसके बारे में नहीं कह सकेंगे। बट हियर अभी जिस तरह से हमने एक एक पेंटिंग देखा, तो ये पेंटिंग ऐसा कंटिन्यूअस आप देख सकते हैं, ऐसे कई सारे स्टोरीज है जो कंटिन्यू है। एंड विथ दिस, अभी आपने कॉस्ट्यूम्स, कलर, ये डिजाइन्स, ड्रेसेस, उसके बारे में बात किए। उसी के साथ साथ आप इस पोर्शन को अगर देखेंगे, तो जैसे कल भी हमने कहा था, आर्किटेक्चरल पार्ट को हम देखते हैं। सी हियर, यहाँ पर आप जो है आर्ट और उसके ऊपर के ये तोरण जो है वो देख सकते हैं, डिजाइन देख सकते हैं। हियर आल्सो देयर इज एन आर्च, और ये ऊपर का पोर्शन दिखाई देते हैं, मंडप पवेलियन लुक्स लाइक दैट। सो ये अलग अलग चीजें, उसको भी हमको ध्यान से देखना है। अभी यहाँ पर भी कुछ आप ये देख सकते हैं, दिस अपसाइड पोर्शन एंड दिस पिलर्स आर लाइक दैट। और उसके साथ अभी यहाँ पर आप देखिए, ये आपको सभी अलग ही दृश्य आपको दिखाई देगा। यहाँ इनके टोपी जो है, किरीट जो है इनके सभी के देखिए, और यहाँ देखिए ये अलग अलग आपको दिखाई देंगे। और सभी के ड्रेसेस को देख करके ऐसा लगता है दीज आर फ्रॉम द पर्शियाज लाइक दैट, क्योंकि उस समय का व्यापार जो था विजयनगरा एम्पायर का, वो दिस पर्शियन कंट्रीज से भी बहुत ज्यादा पैमाने पर शुरू था, और वहां से लोग यहाँ पर आए थे। तो उनका जैसे आए थे, तो उस समय ये इम्पैक्ट इस पेंटिंग्स में हमें दिखाई देता है। सो लाइक दैट। मगर स्टोरी के इसमें इसका क्या कारण हो सकता है, वो स्टोरीज हम शेयर करेंगे, आप उसको डिटेल रूप में पढ़िए। और यहाँ नीचे देखिए, बॉर्डर्स के इसमें पर्टिकुलरली वैरायटीज ऑफ कलर्स यूज्ड हियर। यहाँ अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो सो ब्यूटीफुली, जैसे अजंता के कुछ पेंटिंग्स में हम ये देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। नाउ हियर अगेन द डिफरेंट स्टोरीज आर एट देयर। मैं सारी स्टोरियों को अभी यहाँ पर नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक एक पेंटिंग को समझेंगे, देखेंगे, तब भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ रह गया। आप यहाँ देख सकते हैं, अभी जो कह रहे थे ना, पीछे देख रहे हैं, तो उसका क्या कंटिन्यूएशन, क्या स्टोरी हो सकती है। डांसिंग पोज में ये खड़ा है, बिल्कुल ये डांसर का ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर रूप से दिखाई देता है। यहाँ ब्रह्मदेव जी खड़े हैं, तो वो भी दिखाई देता है। यहाँ इनके हाथों में देखिए, ये ध्वज पताका जो होती है उस तरह से यहाँ पर दिखाई देता है। सो ये छोटी छोटी बातें आप नोट करें, और आपको जो भी और लगता है कि इसमें ये मुझे स्पष्ट रूप से दिखता है, उसको लिखते जाइए। नोट्स शेयर करेंगे आपके साथ में, बुक शेयर करेंगे, रिसर्च पेपर शेयर करेंगे, उसको पढ़िए, ताकि जो पेंटिंग आपने देखा था उससे और ज्यादा कुछ स्टोरीज आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ आपको जो भी दिख रहा है आप नोट करते जाइए। ओके, सो द पेंटिंग्स हैव बीन रिस्टोर्ड सेवरल टाइम्स इन 1979 when the archaeological survey of India began rescuing the sculptures and exterior walls from this accumulated moss, lesion and algae। तो इसके रिपोर्ट अवेलेबल है, ये दोनों रिपोर्ट मैं आपको भेजता हूँ, उसको भी जरूर पढ़िए। थॉरो क्लीनिंग ऑफ द सीलिंग्स व्हिच हैड बीन कवर्ड विद दिस cobwebs, insect nests and these cocoons, ये सभी प्रोसेस जो उन्होंने की। तो these paintings today it is evident that many details if not entire scenes are now lost।
तो ये कई सारे पेंटिंग अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि अब हम इसको नहीं देख पाते हैं। यहाँ कई सारी स्टोरीज, बहुत सुंदर पेंटिंग्स है क्लोज से देखिए। यहाँ और एक फोटोग्राफ मैंने उसी का शेयर किया है। और ज्यादा उसके आजू बाजू के जो पेंटिंग्स है उसको देखते हैं, ये सभी सीलिंग पर है, इसलिए हमारी हम खड़े रह के देखेंगे। गर्दन बाम लेकर के जाना है, हमारे शिवशंकर बाबूजी बोलते हैं झंडू बाम जो है साथ लेकर के जाइए, और ऊपर जितना देर तक देख सकते हैं देखे, फिर बाद में और थोड़ी देर बैठे 10-15 मिनट रेस्ट कर लीजिए बाम लगा करके, फिर उसके बाद देखिए। इतना सुंदर पेंटिंग सारे हैं और उस सबको हमें केयरफुली देखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये हाथ जोड़ करके चरण वंदन कर रहे हैं। ये सेम किरातार्जुनीय स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है। हियर आल्सो यू कैन सी दैट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। यहाँ पर आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उनके बो एरोज वगैरह सभी जो है वो ठीक से दिखाई देते हैं। सो लाइक दिस देयर आर सो मेनी स्टोरीज एंड द पेंटिंग्स। यहाँ पर भी आपको जो है जैसे मैंने कहा था, ये शिवलिंगा है और ये छोटा सा एक टेम्पल इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं। तो ये कई सारे ऐसे अलग अलग पेंटिंग है। और इसी के तरह हम्पी के विरूपाक्ष टेम्पल में भी जब आप जाते हैं तो विरूपाक्ष टेम्पल का जो सीलिंग है उसके ऊपर भी आप पेंटिंग देख सकते हैं। सो सिमिलैरिटीज क्या है देखने के बाद आपको पता चलेगा। ये वहां से है, ये पेंटिंग्स उधर से है। ओके, तो यहाँ के म्यूरल्स के बारे में, द ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग्स अगेन कंटिन्यूस इट्स कोर्स इन द म्यूरल्स ऑफ द विजयनगरा पीरियड। These murals are found depicting scenes from the epics and the Indian Puranas. So the murals are found in the high ceilings of the huge gateways of the Veerbhadra temple. The ceiling is divided into a number of strips, and the individual strips are broken into square or rectangular panels. Each one of the panels depicts a particular scene or part of one, in keeping with the theme of the representation in the central panel. And the unique styles, the paintings of the Lepakshi follow unique style with the elegant line work set against on an orange red background. Most of the painting highlight rich textile patterns, detailed hairstyles of people, and exquisite jewelry. The most spectacular painting is the depiction of the wedding of Lord Shiva and Goddess Parvati. Some of the elements of the painting that stand out are the costumes and jewelry worn by the guests attending the wedding. So the figures of the mythology, यहाँ अलग अलग कई सारे figures उसके दिए हुए हैं. Then the features comparison of paintings on the ceilings, cloths and manuscripts reveal a host of common features certifying to several related pictorial traditions. आज भी अगर आप वहां जाते हैं तो अभी आजकल तो लेपाक्षी पेंटिंग के वस्त्र भी मिलने लगे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है. In spite of obvious difference in scale and techniques, there appears to be a fairly limited range of compositional devices and color schemes. Painting seems to be divided into narrow strips crowded with figures. Registers are combined in rows, one above the other, with a narrow often proceeding in alternating directions from left to right and then right to left. So again here mentioning about the features and these themes, I will share the notes with you. So for the reference, if you want to study more, then you can study here. This Lepakshi, however, recently announced under the Adarsh Smarak scheme. ये गवर्नमेंट का स्कीम है, आप गूगल कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल जानकारी मिलेगी. The 5th century old mural paintings atop the Veerbhadra temple kept fading due to leakage of rainwater and irregular chemical treatment. ये सारी बातें जो है उसके बारे में मैंने ये सारे डेक्कन क्रॉनिकल और कई इसके आर्टिकल लिए थे. मराठी जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पर्टिकुलरली ये manishjayasree.com नाम से जो इनका वेबसाइट है, तो उसमें लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग्स के बारे में मराठी में बहुत अच्छी जानकारी दी है. सो फॉर द मराठी स्टूडेंट्स आई विल शेयर दिस लिंक so that you can read in Marathi. Those who want to study more about Lepakshi, then this is an excellent book, Lepakshi Architecture, Sculpture and Painting. And here another book, Temples and Legends of Andhra Pradesh by Rameshan ji. It's Bhavan's book. So thank you, thanks a lot to all of you. If anyone want to ask any questions or share the notes, not on WhatsApp, then you can use this email ID. So thank you, thanks a lot. And for me, our this entire भारतीय संस्कृति मेरे लिए ये ब्रीद वाक्य है, वसुदेव कुटुंबकम. So thank you. If any questions, most welcome. Sir, will you please explain the difference between true fresco and pseudo fresco? I couldn't get it.
Explain Okay, it in the then right. I will share it. Okay, okay, no problem. Thank you. Yes, most welcome. Sir, thank you very much. It was a wonderful session, and you have given a different look, how to look at the paintings, step by step, how to, what we can say, the look at the paintings with the micro eyes. Thank you very much, sir. Yes, thank you. Yes, anyone else? कुछ पूछना है? Yes, पूछ सकते हैं आप. मोनिका जी, शीर्षा जी, श्री हर्ष जी, क्योंकि आपका हाथ. I had already asked, sir. Thanks. Okay, okay, most welcome. So, is there any questions? If not, then we will stop here, and tomorrow we will meet again. जो भी नोट्स मिल रहे हैं कृपया उसको अध्ययन कीजिए, और उसके बाद पढ़ने के बाद भी अगर कुछ सवाल रह जाते हैं तो नॉट ओनली इन सेशन, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फोन करके भी पूछ सकते हैं. कोर्स खत्म होने के बाद भी अगर ऐसा लगता है 5-10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल के बाद भी पूछना है, देन आल्सो मोस्ट वेलकम. ओके, सो इट्स अ नॉलेज शेयरिंग प्रोसेस.